Friends, let's make our learning of SP more interesting by adding some new flavors to our SP syllabus. Let us understand all the concepts of SP in an animated format. Let's start, and in this video we are going to talk about company secretary. Let's start. My humble request to all of you to please like, share and subscribe to my channel before proceeding this video. Thank you. We have studied company secretary earlier as an important type of secretary. Let's now understand this officer of the company as KMP of the company. Do you know, friends? Company secretary is appointed to perform functions of company secretary under the act. Person should be a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. It is very important. If someone is secretary of a company, then it is mandatory to be the member of ICSI. Following classes of companies must appoint a whole-time CS. First, listed companies, and second, all other companies with a paid up capital of 5 crore or more. The whole time secretary is appointed by a resolution of the boards. The boards decides the terms, conditions and remunerations. Everything about the secretary is being decided by boards of directors, that is boards. आपको पता है दोस्तों, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक सीएस, एक ऑफिस से ज़्यादा कंपनीज में काम नहीं कर सकता अगर वो होल टाइम सीएस है तो। और उसके अलावा एक डायरेक्टर भी होल टाइम सेक्रेटरी हो सकता है, बट विद द बोर्ड्स परमिशन. The whole-time CS cannot hold offices in more than one company. The whole-time CS can be director of a company with the permission of the boards. दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले जो सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं वो किन लोगों के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सबसे पहले जो सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं वो किए जाते हैं प्रमोटर्स के द्वारा ऑफ द कंपनी. दूसरा, उन्हें प्रो टर्म सेक्रेटरी बोला जाता है. और ऐसा नहीं कि ये रेगुलर सेक्रेटरी है, आगे जाके ये सेक्रेटरीज को चेंज भी किया जाता है. ये स्टार्टिंग में अपॉइंट किए जाते हैं और ये अपॉइंट किए जाते हैं ताकि कंपनी के जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ लगती है कंपनी को फॉर्म होने के लिए वो फुलफिल की जाए. तो द फर्स्ट सेक्रेटरी इज कॉल्ड एज प्रो टर्म सेक्रेटरी. द प्रो टर्म सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय प्रमोटर्स मे और मे नॉट बी अपॉइंटेड एज अ रेगुलर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. The pro-term secretary helps in fulfilling different formalities during the formation of the company. Let us understand the duties of CS. So, secretary's duties can be categorized as two. Okay, first is statutory duties and second is general duties. Let's understand each duties in brief. First, let us understand the statutory duties that a company secretary must follow. Okay, first, to organize and to be present at all meetings of the company, including the board meeting. Yes, it is very important. Second, to make minutes of all meetings. मीटिंग में अगर कंपनी सेक्रेटरी बैठता है तो वो कंपनी सेक्रेटरी पूरी मीटिंग की मिनट्स उसको काउंट करनी पड़ेगी एंड नोट डाउन करनी पड़ेगी. कंडक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद द शेयर होल्डर ऑन मैटर्स लाइक इशू ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा. एक जो कनेक्ट सीएस को बनाना पड़ता है शेयर होल्डर्स के साथ ऑन इश्यूज ऑफ ऑब्वियसली शेयर के इश्यूज़ के साथ, उसको एक कनेक्ट बनाना पड़ता है. फोर्थ, issuing notices and circulating to members of the company and others as guided by the boards. Fifth, maintain and update different registers and boards of the company like registrar of members and debenture holders etc. And sixth, filing all necessary returns with the ROC. ROC means registrar of the company. Friends, now let's move on to the general duties of CS. Now see,
This totally depends on the size and nature of business and the terms of arrangement made between secretaries and the company. Some of these we are going to learn in the upcoming video. Friends, beside statutory duties of the company, the company secretary has to also maintain some general duties of the company. Now, this general duties can be like to provide guidance to the board and directors of the company with respect to their duties and responsibilities and powers, to assist the boards in conduct of the affairs of the company, and it can be to advise and assist the boards in ensuring good corporate governance, to perform all the duties that may be assigned by the boards from time to time. All of these things are some general duties of CS. You only have to keep in mind that besides statutory duties which CS has, he also has to ensure the good functioning of the company, of affairs of course, and also whether the boards, whether the employees are working in a fair manner, or what is the corporate governance saying, everything the CS has to ensure. Now let's see about the liabilities of CS. Liability क्या होती है CS की? So since the company secretary is regarded as the KMP of the company, company secretary held liable for several non-compliances and penalties are imposed on him for any default or non-compliances of the provisions of the act and other laws of the land. अभी क्योंकि CS एक बहुत ही रिगार्डेड पोजीशन है ऑफ KMP ऑफ द कंपनीज, तो उसके ऊपर अगर कोई भी उसने कुछ गलत कर दिया या फिर कोई भी चीज़ उससे ये हो गई, तो उसके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ होती है, कुछ पेनल्टीज़ होती है जो उसको फॉलो भी करनी पड़ती है. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि CS है तो ऑल फ्री. इट्स नॉट लाइक दैट. सेवरल नॉन कंप्लायंसेस एंड पेनल्टीज आर इम्पोज्ड ऑन हिम फॉर एनी डिफॉल्ट. ओके दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि CS की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, पता नहीं कितने काम CS को करने पड़ते हैं, कितने लोगों को हैंडल करना पड़ता है. एक कंपनी का हैंडओवर CS के पास होता है, कंपनी की सारी पर्सनल सीक्रेट डिटेल्स CS के पास होती है. अगर कंपनी की इतनी नॉलेज किसी CS को है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास उस कंपनी के रिगार्डेड कुछ राइट्स भी होंगे. नाउ लेट्स लुक एट सम राइट्स विच CS ओन्स. ओके, लेट्स सी द राइट्स ऑफ द CS. दोस्तों, हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स के पास या फिर मेजरली आपके पापा के पास या फिर आपके दादा के पास एक बहुत ही मेजर पावर है, राइट? पूरे फैमिली के डिसीजंस वो लेते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपको ट्रिप पे भेजना हो, चाहे आपको मंथली आपको कुछ पैसे देने हो या फिर न जाने क्या क्या, आपके डिसीजंस सारे आपके हेड लेते हैं. हेड ऑफ द फैमिली दैट इज़ फादर और आपके दादाजी या फिर कोई भी आपके घर में जो हेड है वो. उसी तरीके से उनके पास बहुत सारे राइट्स हैं. राइट्स टू रिस्ट्रिक्ट, आपके घर में क्या हो रहा है किसी तरीके से उनको रिस्ट्रिक्ट करना, मैनर लगाना, एक सिस्टम में बैठाना, उनके पास इसकी राइट है. वैसे ही CS एज द वेरी हेड ऑफ द कंपनी हैज़ सम राइट्स, and that is right to control and supervise the working of his department. उसके डिपार्टमेंट पे पूरा कंट्रोल, सुपरविजन कि वो अच्छे से काम कर रहा है या कर रही है या नहीं. ओके, सो फर्स्ट राइट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ हिज डिपार्टमेंट. घर में कोई भी कुरियर आ जाए या फिर कोई भी पार्सल आ जाए तो साइन करने के लिए आपके पापा साइन कर देते हैं. कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, आपके जो फैमिली के हेड है या फिर कोई भी मॉनिटरिंग है वो उसको साइन करता है. वैसे ही कंपनी का कोई भी इम्पोर्टेंट अगर ऑथेंटिकल डॉक्यूमेंट है तो वो CS उसके पास राइट है कि वो उसको साइन कर सकता है. राइट टू साइन अ डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन बाय द कंपनी एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी. इतना काम करने के बाद कुछ तो मिले. In that sense, the CS has the right
to get remunerations as employee of the company. Remuneration, पगार, salary, इस सब की right है एक CS के पास. After knowing so many rights of the company, now let's look at the role of the company secretary. Company secretary plays a crucial and important role in administration of the company. It can be best explained as a threefold roles as follow. अभी हम 3 रोल ऐसे देखेंगे कंपनी सेक्रेटरी के जो एकदम अच्छी से एक्सप्लेन करेंगे कि उसका रोल क्या है एक कंपनी में. अभी ये जो 3 रोल है ना दोस्तों, इन 3 रोल में सेक्रेटरी काम करते हैं. सेक्रेटरी एक्ट एज एन स्टैट्यूटरी ऑफिसर, ऑल्सो एक्ट एज एन coordinator, and also acts as an administrative officer of the company. So secretary plays 3 vital roles and those roles are as followed. चलिए देखते हैं CS एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर. अभी एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंसेस ऑफ द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. पहला, साइन एनी डॉक्यूमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन. उसके पास लीगल राइट, लीगल अथॉरिटी है कि वो कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का वो साइन कर सकता है. उसके अलावा उसको सारे कंपनी के स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, सारे कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स उसको बहुत अच्छी से मेंटेन करने पड़ेंगे. डॉक्यूमेंट्स as if minutes of general and board meeting of company, registrar of members and debenture holders, registrar of directors and KMP and their shareholding etc. बहुत सारे रिपोर्ट्स है जो एक CS को मेंटेन करने पड़ते हैं. तो एक, वो कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकता है. दूसरा, वो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना कंपनी के, वो उसको मेंटेन करके रखने पड़ते हैं. Let's see secretary, how secretary works as coordinator. Okay, now secretary is required to work as network between the boards and other executives at different level. Secretary is spokesperson of the boards. Okay, now secretary is a coordinator on 2 ways. 2 तरीके से उसको काम करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. सेक्रेटरी 2 लोगों को या फिर 2 टीम को या फिर बहुत सारे लोगों में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी सेक्रेटरी को करना पड़ता है. वो हो सकता है इंटरनली भी हो या हो सकता है एक्सटर्नली भी हो. इंटरनली कैसे? आपके कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, KMPs होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं. उन सारे लोगों को एक साथ इंटरनली कोऑर्डिनेशन बनाए रखना ये सेक्रेटरी एक तरीके से देखता है. और दूसरी तरीके से कंपनी के बाहर वाले एक्सटर्नल लोग जो होते हैं उनके साथ भी एक संबंध, एक रिलेशनशिप सेक्रेटरी को बना के रखना पड़ता है. जैसे कि शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है. इन सारे लोगों के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी को बनाना पड़ता है. इस वीडियो की आखिरी स्लाइड, आखिरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी और शायद इस चैप्टर की आखिरी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले. लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेक्रेटरी एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह भी काम करता है. द पोजिशन ऑफ सेक्रेटरी एनेबल्स हिम और हर टू हैव एन ओवरऑल व्यू ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन and develop a strong and efficient organizational setup. Secretary contributes in administrations of the company whereby recruitment, training, remuneration, position, etc. of staff members is assured. Staff है ना पूरे स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो रहा है क्या, ट्रेनिंग अच्छी तरीके से दी जा रही है क्या, रेम्यूनरेशंस दिए जा रहे हैं क्या, प्रमोशन किस तरीके से हो रहा है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन काम भी एक तरीके से सेक्रेटरी को मेंटेन करने पड़ते हैं. आई होप कि आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. और अगर लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और इसी तरीके से हमारे वीडियोस देखते रहिए. थैंक यू.